ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف کیا ڈرامہ ہے ود مکرم کلیم. اور ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں بہت انٹرسٹنگ ڈراموں کا ریویو لے کے, جن میں سے کچھ پرانے ہیں اور کچھ بالکل برانڈ نیو ہیں. برانڈ نیو ڈراماز کیسے ہیں ان کے بارے میں بہت ہی دلچسپ تبصرہ یہاں پر ہونے والا, اور تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بریلینٹ ججز مرینا خان, روبینہ اشرف اینڈ نادیہ خان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہترین. کیسے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کیوں, ایسے کیا ہو گیا؟ نہیں وہ ان کا تھمز اپ. وہ ایسے کیوں کیسے بھی ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں میں ڈاؤن کیوں کہ میں اتنی تھک گئی ہوں نا. میں نے ویکینڈ پہ قاتل کو چیز کیا بوٹ میں اور پولیس یونیفارم میں ایک ڈرامہ کر رہی تھی. ہاں, اور اف اللہ, جو ساری زندگی کام نہیں کیے, شوق تھے, اشتیاق احمد کے ناولز اتنے پڑھے ہیں سارے, ڈیٹیکٹیو بننے کا شوق تھا, ماشاءاللہ شوق پورا ہو گیا. پولیس والی اے ایس پی رانا بائی دا وے, وہ بنی اتنا نیچرل, اتنا مزیدار, لیکن جو تھک گئی بہت ہے. یہ تو جب یہاں پہ دیکھا جائے گا تو ہم بتائیں گے کتنا نیچرل تھا. ہمارے پاس آنے دو, مجھے یہ ججز پسند نہیں ہیں. آنے دو. ہاں بس آپ لوگ جج کیجیے گا. لیکن پتہ ہے کیا, جو کیریکٹر کرنے میں مزہ ہے, یہ میں بات بولوں, میں نے کتنے میں ڈرامے کرتی ہوں, وہ جو نا مظلوم عورت, آئی ہیٹ دیٹ. دس واز سو مچ فن, اور میرے ذہن میں بڑی پس آئینہ آ رہا تھا بار بار. اٹ از امپاورنگ. بہت مزہ آیا, اور ایسے نیچرل کہ جیسے مطلب بنیز کے لیے بہت اچھا لگا مجھے, اینڈ آئی انجوائڈ اٹ. لیکن جو گرم یونیفارم پولیس والوں کی اور جوتے, سلام ہے ان کو, کس طرح یہ لوگ. اور آج کل تو کراچی میں گرمی بھی کافی ہے. جی ہاں. تو جی ہم چلتے ہیں پہلے ڈرامے کے ریویو کی طرف, اور ڈرامہ سیریل میں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ڈرامہ سیریل میں آج کیوں شامل ہے. کابلی پلاؤ آنر ہی نہیں ہوا. سری لنکا اور پاکستان کا میچ تھا, جس کی وجہ سے ہم نے آخری منٹ میں میچ کو شامل کیا, اور جو ووٹنگ تھی ہم نے, وہی میں کلیئر کرتا چلوں, اب جو ووٹنگ تھی اس کی, وہ ہم نے ان کی پریویس ووٹنگ اٹھا کے مینیج کیا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں غلطی نہ ہو, سب کو ان کا پراپر حصہ ملے. تو چینل ہے اے آر وائی ڈیجیٹل, پروڈکشن ہے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ, پروڈیوسر ہیں فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی, ڈائریکٹر ہیں بدر محمود, رائٹر ہیں زنجبیل عاصم شاہ. کاسٹ میں شامل ہیں بہاج علی, عائزہ خان, عزیکا ڈینیل, عثمان پیرزادہ, شہزاد نواز, اعجاز اسلم, آغا مصطفیٰ, نمیر خان, سبینہ سعید. مرینا جی. So what I want to say is that Badr is back. مجھے بدر کی جھلک نظر آ رہی تھی اس والے ایپیسوڈ میں. There was a lot happening. I think it was handled well. ہیں flaws ابھی تک ہیں, and in the storyline, in the scripting, plus جو چیز مجھے ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ جس پہ میرا دل تھوڑا سا خفا ہوتا ہے, is the relationship between عزیکا and بہاج. وہ ابھی تک جیل نہیں کر رہی, بٹ اوور آل مزے کا ایپیسوڈ تھا. جو باقی چیزیں ہیں وہ پھر ہم باقی چیزوں کے ساتھ ہی بات کریں گے, ادروائز آئی ول گیو اٹ تھمز اپ. تھمز اپ. روبینہ جی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس ہفتے میں کو ہم کر رہے ہیں, یو نو اٹس بیک ان ریٹنگ, بیکاز ایپیسوڈ 10 واز دا گیم چینجر. یس. Episode 10 was a story that we've been waiting for. Episode 10 was where we wanted to be right from episode 1, 2, 3. 5 پہ یہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جس نے آنا تھا اور ہمیں گرپ کرنا تھا. The first 10 minutes were crazy. Well written, well acted out, well directed. پھر بھابھی آ گئی. بھابھی باز نہیں آئی. پھر بھابھی آ گئی. بھابھی کے میاں کا فون آیا کہ وہ کڈنیپ کسی نے دیکھ لیا تھا نا ہوتے ہوئے, تو وہ کڈنیپ ہو گئے ہیں. سب سے انٹرسٹنگ کہتی ہے آپ نے میرے بھائی کو کیوں اٹھایا. بھائی تمہیں پتہ ہے کیوں اٹھایا. ہاں ہم نے ایسا کیا کیا, تم شادی میں آئی ہو ایک دن پہلے, اور شادی میں آ کے اپنی ساری باتیں کر کے گئی ہو. ہاں تو اٹھانا تو بنتا تھا, تمہیں پہلے سے بتا دیتا کہ اٹھا لیا جائے گا تمہارا بھائی, کہ تم ایسا کرو گی. ہاں. So I'd say ignore the bhabhi and the nand. وہی بدر کی جھلک. ہاں, the rest of the episode was stellar. I loved everything that Aiza wore, because اس ڈرامے میں عائزہ کے کپڑے بھی ریٹ ہوں گے always, because ہم ایئرنگز بھی. ہاں, because ہم بہت عرصے سے ملتے ہیں اتنے پیارے ایئرنگز. ہم اس بات پہ بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی کریکٹر دیتے ہو پلے کرنے کو, تو پھر یا تو وہ اس کو کیپیبل ہو خود سے, you know, would know how to. And if that person doesn't know how to, then don't give that person that character. So yahan there's this woman who's given
the character of a very well-dressed, haughty person, and she's looking that. Yeah. So the episode 10 was okay for me. I loved watching it. बड़ा मुझे मजा आया. आपने ग्लास गिने थे? ना मैंने नहीं गिने. मैंने तो कहा कि ये आप जगह लोगों आ की गई नजर है. हटी नहीं ना, आप कपड़े कपड़ों से नहीं हटी. The butterfly outfit was हाँ, just so the Nomian sari beautiful. outfit was beautiful. Beautiful. It was beautiful. सिर्फ बालों में थोड़ा सा मुझे मसला Sorry. था because बहुत ज़्यादा मुझे जो gel मसला थे, था ना, but- वो जो वहाँ पे जो स्टाफ था जो सर्व कर रहा था, वो सेम स्टाफ 2 मिनट के सीन में उनकी 27 क्रॉसिंग थी. वो बात करते थे और वो इसलिए भी, एक तो उनकी जो शर्ट का कलर था वो बहुत ही शॉकिंग था, मतलब आंखों में नजर आता. फिर जो ग्लास माशाल्लाह थे वो नीले रंग का शरबत, पीले रंग का हाँ, शरबत, ये मैंने नहीं सब नोट किया. रंग का मैंने शरबत, colourful लाल रंग. नोट किया. ये शरबत मैंने- का रंग बहुत ऑड मैंने था. बिल्कुल हाँ, नोट you're नहीं right. ये Yeah, कौन I सा did शरबत है notice. कि रंग खोल के बनाए हुए थे? मैंने कभी किसी शादी में और इस नीला शरबत नहीं पिया. ब्लू ड्रिंक होती है दुनिया में और बड़ी वो एक पीना कोलाडा टाइप हो, लेकिन हाँ, वो नहीं था. unusual वो- चीज वो- होती है, but वो it कुछ और wasn't. था, वो Didn't लड़की- look like that. आजकल एक नया ड्रिंक है ना, आई डोंट नो वेदर वी कैन टेक द नेम ऑफ इट, जो ये- एडवर्टाइज भी ये वो कर नहीं रहे था, हैं. ये वो नहीं था. हाउ डू यू नो? बिकॉज लग रहा था उसमें. नहीं. So, okay, I will give it a thumbs up. वन थम. ठीक ना दिया. मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी में जो शानज़े का वॉइड है ना, वो मुबशरा ही उसको सिर्फ फिल कर सकती है और कोई नहीं. मुझे और कोई सुकून नहीं दे सकता. ये बन रही है पोटेंशियल. तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि यादगार रहे, जो डिफरेंट है, लार्जर देन लाइफ है. द वे शी इज़ सेइंग हर लाइन्स, द वे शी इज़ लुकिंग, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है. तो मज़ा आता है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको, क्या पहना, क्या कैसे किया. आई एम हैप्पी कि बहाज फाइनली हैज़ सम लाइन्स टू से और स्ट्रॉन्ग आया है. मुझे बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर लग रहा है. मैंने जो है ना, वो एक अलग चीज़ है जो कि ऐसे जवाब दे रहा है जैसे वो कहती है कि अच्छा थैंक यू, मुझे आप लेने, या तो अच्छा हुआ तो मुझे लेने आ गए. कहता है मैं लेने वेने नहीं आया हूँ, बहन से मिलने आया. Isn't that amazing? That was like a punch, सीधा वाला पंच था वो. तो जो बहाज इस रोल को कर रहा है ये यूनिक है, क्योंकि वरना वही होता है कि बहन की लिहाज में हीरो जो है वो ओके चलें साथ दे देता है. ये साथ नहीं दे रहा है, ये अभी भी, और कहता है कि अब मेरी मैं चलेगी. उसकी एक लाइन है कि अब मेरी भी मैं. ये जो है उसके वालिद को पता था कि अगर मैं कोई स्टेप लूँगा तो ये वलीमे में शरीक नहीं होगा, तो उसी दिन उससे अगवा ज़रूर करवाना था. वो 2 दिन बाद करवा लेता है कि मेरे बेटे का रिएक्शन आएगा, मेरे बेटे को डेफिनेटली वो लड़की बताएगी. ये कोई नहीं कह रहा, बाहर खड़ा हुआ था ना, तो उसने कहा इतना फेडअप हो गया, उसने कहा बस जल्दी जल्दी करना है इस एपिसोड में जो भी करना है. मुझे लगता है कि आई थिंक कोई नहीं कह रहा कि फ्लॉज तो हैं, अभी भी हैं, बट if we are comparing it to the previous episode, 9 episodes, this one went like this. It was flaws, story में flaws हैं, no doubt. लेकिन इंटरेस्टिंग था बात Yeah, ये है yeah, कि जब very आपका good. ड्रामा खत्म हो देखते देखते और आपको पता ना चले कि जल्दी ऐसे कैसे खत्म हो गया. जैसे एक ड्रामा था वो खत्म नहीं हो रहा था, ये जल्दी खत्म हो गया. दैट मीन्स कि कुछ इंटरेस्टिंग था. बाकी डिटेल से मैं बाद में बताऊंगी. सो या बट मुझे लगता है हमारे ड्रामा में अब शादी के फंक्शन नहीं होने चाहिए, खासतौर पे अमीरों के घर. जो गरीबों वाली शादी है वो ज़्यादा हैपनिंग और रियलिस्टिक लग रही है. अमीरों प्लीज़ बंद कर दें शादियाँ. जिस तरह ना वो नहीं, एहराम thumbs up जुनून कर में रही हैं, thumbs up कर रही हैं कहते उन्होंने हुए. एडिट कर दी, काट दिया, ठीक था. इससे बेहतर हमें ना दिखाएं. जैसे आराम में जुनून में काट दी थी शादी, काट दी दिखाई नहीं. इसमें. लेकिन वो सिचुएशन थी, उसने तैयार होना था, लड़के ने नहीं आना था. लेकिन बेहतर है कि आप शादी काट ही दें. सेटअप बहुत बुरा हम लोग शादियाँ शूट करते हैं, बहुत बुरी, बहुत अजीब शादी. बहुत सस्ती होती, कोने में होती. आई थिंक वो कोई गोला गंडा खड़ा हुआ था बाहर, काट कर वो बना के शरबत दे रहा था, वो वही सब बोल, इसके अलावा कोई चीज़ सर्व नहीं हो रही थी. अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लें. जंजबील आसिम, मरीना जी. So I think इस दफ़ा as I said the story was moving, आगे जा रही है. At least हम उसी सिनारियो में नहीं फंसे हुए थे. The 2-3 questions that I have is that एक तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें ये सब ये आती है. पहले वो बहाज आता है, फिर अब्बा जाते हैं, बिकॉज कहते हैं मैं क्यों जाऊँगा, उसको और आना अब्बा बड़ी चाहिए. क्लियर बात बता के आते हैं. हाँ. हाँ, बड़ी सीधी सीधी बात नहीं बताते नहीं, हैं. अब्बा ने और इसने जो फादर इन लॉ है, वो एक बात उन्होंने पकड़ ली है जो मुझे लगा है, वो है if you don't do this you will have another divorce. So she is now being controlled by that line कि एक और हो जाएगा, and that is how the father very cleverly said that line to her in the room. तो वो आ जाती है नीचे और तमीज़ से भी आ जाती है. एंड यहाँ फिर
بیک ہینڈ دے رہے ہیں بار بار باہر جو وہ کچھ کہتے. دیٹ واز اے ویری نائس سین. آئی تھنک اٹ واز کنڈکٹیڈ ویری ویل. دا ہول سین واز گڈ. مائی اونلی کویسچن واز, جس کا آنسر مجھے تھوڑی دیر بعد ملا تھا, کہ وائی ازنٹ اینی ون آسکنگ وہاج کہ یہ لڑکی کون ہے اینڈ وائی شی از اسٹل ان یور لائف. بٹ جب ابا کے ساتھ اس کی جو آلسو گریٹ لائن اینڈ واٹ اے پرفارمنس شی گیو اپنا آئزہ, جب اپنے فادر ان لا سے بات کرتی ہے تو ادھر پتہ چلتا ہے کہ obviously ان لوگوں نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے, اور so that question of mine went out of the window because obviously this has been discussed. Azika's character has been discussed in the family. So Shehzad also tries the same thing, you know, it'll be a divorce. Then I love the way she says, "Ek shaadi nahi, do shaadiyan tootengi." Do you know what I mean? Because he said that something, do you know what I mean? And then usne jo jawab diya, jo expressions diye is bachchi ne, excellent. I think that scene was my favorite of Aiza's, and that line. I mean, wo jawab usne kya maze kar diya. I will say, I think I'm going to say 6.5. So 6.5 for the writing. Yeah. Rubina ji. I think the writing is going where we wanted to see it right from the beginning. सारे conversations भाभी और नंद आयरा की छोड़ के कि मैं जा रही हूँ ढूंढने, अगर लिख देते कि मैं थाने जा रही हूँ रिपोर्ट कराने कि मेरे मियाँ अगवा हो गए हैं, मैं आग लगा दूँगी आपके घर को, दफ्तर को. चलो हम कहते हैं वो बेचारी बहुत सदमे में थी, बट वो उनके डायलॉग भी बेहतर हो सकते थे. बट जनरली द रेस्ट ऑफ द डायलॉग्स, द स्क्रीन प्ले वर्कड फॉर मी फ्रॉम द राइटर्स साइड. आई विल गिव इट अ 6 for sure. Good job. Nadia. What's strange for me is कि जब किसी एपिसोड में एक सिचुएशन म्यूट होती है, ये कैरेक्टर्स ने क्या बात की है वो म्यूट हुई, उसके बाद तो फिर वो प्लान एक्शन में आ जाना चाहिए. इसमें अजीब चीज़ ये थी कि एक म्यूट सीन के बाद जो वहाज और नहीं जो फादर और उसमें अजीका में बात हुई है म्यूट थी. देयर वाज अ प्लान कि क्या अच्छा फिर मैं क्या करूं, आपने कुछ करना है उसको प्लान बताया, और उसके बाद वो वहाज से मिली है तो अब प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए था, वो भी म्यूट सीन था. मैं आई एम वंडरिंग कि क्या बात हो रही है. और स्ट्रेंज था क्योंकि जब एक कोई प्लान बनाता है तो आगे एग्जीक्यूशन आती है, दूसरा सीन नहीं कभी म्यूट होता. उसमें भी ये वहाज के साथ गाड़ी में बैठी है और वो 2 म्यूट सीन्स अनयूजुअल हैं. देख पहला वाला म्यूट तो नहीं था, पहले वाला भी म्यूट था कि जिसमें शुरू बताया हुआ था बोलने से वो बोलती है कि मैं आग लगा दूंगी आपके घर. ना जब वो उसको बता रहा है कि अब तुमने करना क्या, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू, तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा अगर तुम ये करोगी, क्या प्लान है, वो म्यूट है. Okay. फिर उसके बाद अब प्लान एक्शन में आना चाहिए. अब उसने कुछ कहा होगा कि तुम वहाज को ये बोलो वो बोलो. स्ट्रेंज मुझे लगा कि वो सीन भी म्यूट है एक्चुअली. हाँ, उन्होंने तो अपनी तरफ से ये बता दिया हमें कि उसने जाके सब कुछ उसको बता दिया. ये सेकंड सीन क्यों म्यूट था मुझे समझ नहीं आई. बट ऐसा मतलब वहाज शादी में आ जाएगा नहीं, ये अनयूजुअल है. मैं ये सब बता रही हूँ कि दिस इज नॉट नॉर्मल. उसने कहा होगा तुम वलीमे में जाओ, मैं इसको छोड़ दूंगा. जब भी ये तो ऐसा ही है जैसे कल चांद की चौदहवीं है कि जब प्लान बनता है वो जो नहीं होता गौर से पंटो मेरी बात सुनो पिंटो, फिर तुमने ये करना है, उसके बाद फिर प्लान आता है. उसके बाद प्लान है ना. और नहीं, उसके बाद दूसरा म्यूट सीन नहीं आता. बहुत गहरी बात कर दी है मुकर्रम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा. मुकर्रम ने तो उसका जवाब इतना अच्छा दिया. मुकर्रम ने इतना प्यारा जवाब दिया. उसने कहा इसका मतलब है बाज का शादी में आ जाए जैसे कि कल चांद की चौदहवीं है. ऐसी गल हुई नहीं. अच्छा फिर क्या हुआ? ऐसी क्या होने? मुझे अजीब ही लगा क्योंकि अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिली और हमें नहीं बताई तो अगला सीन तो एक्शन का होना चाहिए था. ऐसी कॉमेडी दिस वाज व्हेन शी कॉल्स हिम द फादर ने एक प्लान बन रहा है और वो एग्जीक्यूट होने के बजाय तुम अगर ये करोगी तो फिर जरूरत क्या थी इतना? क्या थी, बस सस्पेंस में किया. लेकिन सीन्स मुझे 2-3 अच्छे लगे. एक तो उस्मान पीरजादा के साथ जो उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम बेटी को सुना दी कि भाई तुम्हें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्यों शादी की, क्योंकि भाई तुम्हारा लास्ट चांस था, तुम्हें कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता. तो उसको दिखाया है आईना फॉर द फर्स्ट टाइम. और उसके बाद अब ये थोड़ी सी जो उसके अंदर बल और गट्ठें लगी हैं ना वो खुलनी शुरू हो रही हैं. तो इट्स नाइस टू सी सच अ पर्सन ब्रेक. ये शी इज़ ब्रेकिंग नाम मुबशरा आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रही है. अच्छा सीन था. मुझे वहाज और जो मुबशरा का सीन है उसके भी डायलॉग्स अच्छे लगे. दैट वाज आल्सो नाइस. आखिर का भी बड़ा अच्छा था कि भाई अंकल कैसे हैं आप, अंकल एक काम करवाना था आपसे, डिवोर्स करानी किसी की. अच्छा फिर भाई शुरू में आता है और शादी वाले दिन क्या तस्वीरें ले रहा है, ये वो क्या हो गया यार, अभी इधर यहाँ सीन ना क्रिएट करो, नहीं तुमने ऐसे बोलना, अच्छा करूँगा.
मान भी गया इतनी जल्दी हैं, भाई की समझ नहीं आती, वो थोड़ा मुझे स्ट्रेंज लगा, बट ओवरऑल बट सीन्स भाई वर को, मोर। भाई जो तस्वीरें खींचा, भाई को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं, वो कह रहा होना है चाहिए कि कि मेरी बहन के साथ नहीं करें। ब्लॉगर्स आए हैं, इतना कुछ आए हैं, मैंने नहीं करना। जब ना कर दी तो इतनी जल्दी कैरेक्टर मान कैसे गया? ओके मैं कर देता हूँ। नहीं, but she's right, because how can you force someone for a divorce? भाई मीनिंग आप कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, उसने एक्चुअली साइन करना है, लड़की ने साइन करना, यू कांट जस्ट से कि मैं ये करवा दूंगी। अच्छा, एक और बड़ी मेरी फेवरेट लाइन, तुम्हें पता नहीं कि मैं पागल हूँ। वहाँ है ना शानजे का फ्लेवर एकदम, कैसे करंट लगा मुझे, मैं कहा मेरी शानजे मतलब वो था, स्टाइल था भाई, जो बात है वो बशरा ने स्टाइल में बोला है, और कह रही है तुम्हें पता नहीं मैं पागल हूँ। तो वो मुझे लाइन अच्छी लगी। तो दिस टाइम द लाइन्स वर मच बेटर, जूसियर, एंड आई विल गिव ठीक है, 7। डायरेक्शन की 7 यार दूंगी खुल के नंबर, किसने क्या बिगाड़ना, मेरा बिगाड़ लो। नंबर तो मैं खुल के दूंगी, नहीं अच्छा था। डायरेक्शन की बात नहीं, पहले हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं, और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं मैं ड्रामे से 1944, यानी कि Okay, not 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। मरीना जी, बदर महमूद। Like I said, Badr is back. A few things जो मुझे बहुत अच्छी लगी was one when she calls the lawyer, ना uncle आपसे एक काम है, and uncle was like, हाँ, अंकल ने आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, आना ही नहीं चाहिए था which I अंकल को, मैं thought तो ये was- सोच रही थी अंकल आए क्यों इतनी बेइज्जती के बाद। हाँ, नहीं वो तो he's a friend's, you know, he's the father's friend. क्योंकि ये जुमला उन्हीं से कहा। But you know that was a good touch, because otherwise you know you could forget कि भाई last time क्या हुआ था. So I thought that was a very good touch, and you know आप अभी भी मुझसे नाराज हैं. But overall I think he बस I just wish the Azika and Wahaj scenes can be they need to bring the chemistry, because अब जो वहाज के और आयजा के scenes आ रहे हैं, even though they are at they're constantly you know fighting, and they you know एक जुमले, but you can feel you know you can feel the chemistry in a negative way, but you can feel it, because you know those are sparks है ना, Negative, आपको negative. eyes से पता चल because those are good actors playing their parts. Exactly. No, I don't think this मुझे- kid is a bad actor. I नहीं think, नहीं, फर्क है। But when you do a weak performance, then it's up to the director to say, no, I want to see this in your eyes. I want to see you do this. That is what I think is missing, because this girl has done some good stuff, but here I feel that she's just let go. मुझे ये I think बताएं she's कि also not making एक an effort. इतना यही ना, अहम सीन हाँ। था कि शादी के बाद अगले दिन आप अपने महबूबा के घर के बाहर वेट कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, वो इम्पैक्ट ही नहीं था। हाँ? उसने वो अपने काम में आराम से लगी हुई, बस एंड में एक दफा उठ के देखते थे वो नीचे ही खड़ा हुआ है। No, but even he, when he says, "Na, I'll be here all night" or something, either their brother needed to build up their बिल्ड अप होना past, चाहिए था थोड़ा सा हाँ, वो कि you know इतने everything. इंटेंस सिचुएशन है ये तो कि वो फंस के सिचुएशन Exactly the same thing when Azika calls the father और एंड में वो मान जाती है कि you know आपको क्या चाहिए. Again that is a scene जिसमें आपने अगर किसी को अपने नीज पे लाना है या आपने गिराना है तो आप उसका बिल्ड अप करें, you know. ठीक है वो कह रही है कि मैं लेकिन again believability factor, because in the end obviously nobody can, वो तो गुस्से में कह रही है ना, but उसको आप build up कैसे करते. So there two three places I feel that I think Badr needed to you know up the game, but I think overall I would say 6.5. 6.5. Yeah, good job. Good job. Very रवीना good जी। job. देखो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, जो दूसरी लड़की है ये अगर चली जाती है वहाज की ज़िंदगी से किसी को अफसोस नहीं होगा. सो ये तो एक फेलियर है ऑफ दिस कपल, that they were never
पुट अक्रॉस एज अ कपल, चाहे उसमें गलती डायरेक्टर की हो, चाहे उसमें गलती एक्टर्स की हो, चाहे राइटिंग की हो, मगर ये गलती हुई है और ये वहाँ है उस जगह पे, और इतनी सॉलिड है, मतलब आपको ये जगह ऐसी बनानी थी कि जब ये लड़का उसको छोड़ के जाता तो हम कहते ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, हम तो कह रहे हैं जाओ, कोई मसला नहीं है. We never felt anything for these two, this couple. तो कहीं किसी की गलती है. I will not say इसकी या उसकी, बट कहीं कुछ गलत हुआ है. लेकिन ये वाला वाला बात करें तो फिर डायरेक्टर पे ही जाएगा ना, मतलब आपने एट द एंड आपने प्रोडक्ट बना के देनी है. नहीं, बट देखिए ऑल्सो रुबीना हैज सेड दिस ऑल्सो, समटाइम्स एन एक्टर हैज़ टू टेक ओनरशिप. देखिए आपने कर लिया ना, इवन इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट, और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन, बट यू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, यू आर गेटिंग गुड बक्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग, देन यू हैव टू टेक सर्टेन ओनरशिप. So yeah, I would say 5.5. 5.5 For के जॉब. हाँ. नादिया, ड्रामे के सीन आप ऐसे वलीमे में जाएंगी? वलीमे पे मैं जरूर जाऊंगी. हमें क्या फर्क पड़ता है, तो खाना अच्छा हमने तो हो, खाना खाना है. जबरदस्त, हाँ, मैं तो हमें तो जाऊंगी. कोई मसला नहीं है. आप कपड़े होंगे, बाल ब्लो ड्राई होंगे तो हम तो चले शरबत जाएंगे. पिएंगी? हाँ, ब्लू. शर्मा प्लीज के. मैं तो अभी भी कलर देख के जाती हूँ भाई, कलर अच्छा है, ये वाला मशरूब दे दो. ब्लू, पर्पल, ये वाले कलर्स अट्रैक्ट करते हैं. आई हैव नेवर सीन अ ब्लू इस तरह वाला, शादियों में तो कभी नहीं देखा. नहीं देखा. तो ये बहुत हाई फाई वेडिंग थी, इसलिए ब्लू ड्रिंक भी थी इसमें. और सिर्फ वही थी. सीरियसली. मैं तो बॉटल भी लेके जाती हूँ, उसमें डाल के घर ले आती. नहीं देखो क्या लाई मामा. नीला पानी. अच्छा ब्लू ड्रिंक, Try this drink. नीला पानी. तो मैं तो जाती हूँ, मेरी तो बात छोड़ें. मुझे लगता है इस ड्रामे में, शूट में मूवमेंट नहीं. सीन खत्म जब शुरू होता है ना, तो बस दो लोग खड़े हैं तो खड़े ही हैं. नहीं, मूवमेंट थी, वो सारे वेटर मूवमेंट ही तो कर रहे थे, ग्लास उठा के से वो गुजर. वेटर्स की है इवन, मतलब मुझे मूवमेंट नहीं मिल रही इसमें, कि एक सीन शूट हो रहे हैं लेकिन सीन बन नहीं रहा है, कि यार ये मैं यहाँ से ओपन करूँगा, फिर थोड़ा उधर चले जाएंगे, फिर थोड़ा वहाँ, वो पूरी एक ही जगह लाइंस हो रही हैं और सीन ख़त्म हो जाता है. तो बहुत इसका जो है ना, कैनवस छोटा है शूट का. सीन्स इतने अच्छे देख लिए ना, जोक सरकार देख लिया, जिंदो देख लिया, रज़िया देख लिया, उसके बाद ये लेज़ी डायरेक्शन लगती है. ये फिर भी लगता है कि इट लैक्स वैरायटी. एक जैसे वो सब करीब करीब हैं, ये वो कर लिया, थोड़ा और मेहनत से खूबसूरत. अब वो लड़की बाहर है, भाई को ढूंढने गई है, 4-5 गलियों में जाती, इधर उधर जाती नहीं, घर से बाहर आउटडोर बहुत कम है, कमरा फिर वही है, और वो एक फ्रेम है कि जब दिखाना चाहिए था कि अब आज़ा किस कमरे में गई वो भी दिखा देते. थोड़ी सी कुछ चीज़ें मुझे लगी जो होनी चाहिए थे शूट, जस्ट फॉर वैरायटी एंड स्पेस के लिए. 10 मिनट 35 सेकंड पे अज़ीका बेचारी है, 10 के साथ गलत हो, मुझे लग रहा है उसके खिलाफ तो कोई साजिश है. वो आई है, कैमरा हिल रहा है, देखा कितनी देर कैमरा हिला है. यस. वैसे एक और चीज मैंने नोटिस किया था, व्हाट नादिया सेड लास्ट टाइम विद द वायर्स, वो वायर्स कितनी अगली है, देखा ना. So है ना, आज देखा ugly, and especially when the TV is not on, remove the wires. बिल्कुल. मतलब एस्थेटिकली किसी ने उस कमरे को नहीं देखा कि ये हमारे प्रोटैगनिस्ट, हमारे हीरो का कमरा. अब हीरोइन भी आ गई है इसमें, और वलीमे का दिन है, कमरा सजा हुआ होना चाहिए कि फूल रख देते, कुछ रख देते. कुछ तो कमरे वो लाइटिंग लोग बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं. उस कमरे में लाइटिंग भी नहीं अच्छी हुई. उन्होंने कहा वैसे 2 दिन में तलाक हो जाएंगे, फूलों पे खर्चा क्यों कर मुझे रहे हैं. प्यार हुआ था मैं बहाज, और इनके कमरे की एक लाइट होती थी लाल पर्पल, इसमें तो वो भी नहीं किया हुआ. देयर इज नॉट इवन गुड लाइटिंग इन द रूम लैंप्स ऑन हो, कुछ अच्छा खूबसूरत लगे, वो भी नहीं है. नहीं तो अब्बा सारी लाइट्स बंद कर देते जाते ये हुए. मसला है, सोलर करा लो घर को. तो मैंने तो ये इस तरह के फ्लॉज, फिर शादी मुझे वही लगा कि वलीमा वाज वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, इतना छोटा सा जगह, और मेरे ख्याल आयजा को आना ही नहीं चाहिए था, कि जब तक ना आए, हीरो को पता नहीं है, ऊपर से देख रही होती कि वो आएगा तो मैं आऊंगी. हाँ, वो आ गई, तस्वीर लेके जा रही है ये वो. तो एक दिन पहले ही सब कुछ अपने साथ वो इंसल्ट करवा के गई है, फिर तैयार होकर वहाँ खड़ी होगी. वो कहती है कि वो इनका वलीमा बाद में होगा. तैयार हुई है. अच्छा, ज़्यादा नंबर देना इस ड्रामे को डायरेक्शन ज्यादती है उन डायरेक्टर्स के साथ जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं. यासरा रिजवी वर्किंग विमेन करती है 8th और 9th मंथ में, जाके 5 दिन घर जाती है, डिलीवरी करा के फिर आ जाती है. 8th 9th मंथ में इस बंदी ने शूट किया है. फिर उन डायरेक्टर्स के नंबर बनते हैं, या दूसरे रज़िया के डायरेक्टर के, बाकी के उनके बनते हैं. इसको हम कैसे दे दें जहाँ नज़र आ रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ. बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि मेरे बाकी डायरेक्टर्स बहुत जान मार रहे हैं भाई.
तो Numbers? 4 फॉर बदर. 4 फॉर बदर महमूद. अब जो ऑडियंस है वो कह रहे हो कि हम कोई बात ऐसे ही कर रहे हैं. आप अगर जाके ड्रामा देखें और आपको जब ये पता हो कि उनके साथ बाकी ड्रामों को भी देखने से नादिया बात करें तो फिर ज़्यादती हो जाती है कि आप उनको भी उतने ही नंबर देते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे. और आप ये शादी वाला सीन यकीन मानिए देखिए, और अगर इसकी किसी ने डबिंग कर दी ना, बहुत फनी डबिंग होगी. मैं आपको वैसे हिंट दे रहा हूँ, कोई मीम बनानी हो तो शादी वाला सीन परफेक्ट है. और जितने वेटर्स गुजर रहे हैं ना, और उनमें से वेटर्स की कमेंट्री कर देंगे, वेटर्स क्या सोचते हुए गुजर रहे हैं उन कैरेक्टर्स के दरमियान. बहुत फनी बनेगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 8600 हुए और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 2580. 30% बोलते हैं 3%, बिकॉज काबली पुलाव को हमने माइनस किया ना, तो इधर पहले चले काबली पुलाव पे सब जाता था. तो लेकिन मैं ये वोट्स किसके हैं? ऑडियंस ड्रामे का नहीं, नहीं, काबली ड्रामे के के तो नहीं। ड्रामे के डायरेक्शन इस ड्रामे के इस ड्रामे सो द ड्रामे के ड्रामा कैसे बना? इज बीइंग वॉच्ड. वो तो है, लेकिन इसकी तो वोटिंग हुई नहीं, तो किस तरह हमने इसकी डालें? लास्ट वाली वोटिंग उठाई है ना. फिर भी अच्छा लास्ट में Last अगर वाली, लास्ट में इतने थे तो फिर इस last दफा में तो इससे इतने भी थे. ज्यादा होते अगर हम हाँ, अगर real खाली time मैं लेते होता तो फिर हाँ 10 एपिसोड के तो और ज्यादा होंगे. अब चलते हैं एक्टिंग की तरफ और आयजा खान. महीना जी. So just on the votes, मैं कहती हूँ this proves that you can't put a number on anybody on aesthetics or on beauty or on art हाँ, or हाँ. everyone has their own you know view, and सिर्फ ये चीज़ आप recognize करें कि what is made for you and what is not made for you. You know, don't, I think something that you feel is not made for you, so one shouldn't be too critical, which we are, but doesn't matter. That's what our job is right now. Aiza has done a wonderful job इसमें. मुझे at least वो जो anger था ना, and the dad and the, you know, वो सारा कम हुआ है. And by wearing that outfit and carrying it the way she carried it, oh my God. Not that that's got anything to do with acting, but yes, in one way it does, because you have to get ready for it, you have to think about it, you have to perform in it, you have to. So I think I am going to give her definitely a 7, because this time she's done a Very good job. she's used her eyes, she's, you know, वही मैं कहती हूँ ना, जब आपके पास performance का chance है, everyone's an actor actually. They all are good performers. Of course. So chance मिलना चाहिए, and she's got that. Very रुबीना जी. So the transitions that she did, क्योंकि ये वो लड़की है जो कि हर किसी को, अपने बाप को भी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करें थी. वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसमें वो अपने भाई को बोल रही होती है और हंस हंस के बोल रही होती है, बात बहुत गलत कर अच्छे, रही होती very है, good. The लेकिन transitions, smile होती है और that was a good scene. That was a very That was a good good performance by her. कि वो स्माइल कर रही है, वो इतनी खतरनाक बात कह रही है. Then there were scenes with Bahaj, गाड़ी का सीन जहाँ वो अपने आप को कंट्रोल करती है और उतर जाती है गाड़ी से, या जो भी कहती है कि you know बाप की बात सुन के. सो वो ट्रांजिशन जो उसने दी है, क्योंकि बहुत ही अनजस्टिफाइड जगह बनती है अदरवाइज, कि ये तो लड़की इतनी हॉटी थी, ये कैसे एकदम से ओके हो रही है हर चीज़ के साथ, बिकॉज शी गेव द ट्रांजिशन. सो आई विल गिव हर 7 फॉर श्योर. वेरी गुड जॉब. very good job. नादिया, आपने लास्ट टाइम आपने कहा था कि जब ये तैयार होती है इसके साथ कुछ बुरा हो तो आपकी बात प्रूव होगी इस वाली एपिसोड में भी. ये हुई पहले है। सीन में वो तैयार हुई और मैंने कहा दोनों की शादी ऐसी है, दोनों के ऊपर ना तलाक की तलवार लटक रही है. अभी शादी इतनी कम दिनों में तलाक की बात, बहाज ने भी बोल दिया मेरे ख्याल, कितने 10 मिनट लगते हैं. नहीं, कहते 10 सेकंड लगते हैं. 10 सेकंड. और मैं कहती हूँ कि वो लोहे को लोहा ही काटता है, यही एग्जाम्पल है. लोहे को कुछ और काटता है. लोहे को लोहा ही काटता है. यही हो रहा है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. मैं बताऊँ, ये ड्रामा जो है, एक तो ये बिजनेस वेंचर है, ठीक है ना, ये कोई आर्टिस्टिक काविश नहीं है, ये एक प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, जिसको चला रहे हैं सिर्फ आयजा एंड बहाज लिख लें, और कुछ ज़्यादा है नहीं इस ड्रामे में. तो फॉर दैट एंड द वे शी सेड हर लाइन्स एंड द वे शी डिड हर सीन्स, आयजा ने डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी सीन में, अपीयरेंस वाइज. इवन जो बालों पे जेल आ गई उस पर भी मेहनत है, उन बालों को, लेकिन वो करेक्टर को सपोर्ट करते हैं. प्लस अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आ गई है सिचुएशन में कि नहीं मुझे अब बर्दाश्त करना है, तो इसलिए मार्जिन था एक्टिंग का और उसने किया है, कहीं भी जाने नहीं दिया अपने उसको सीन को. तो 8 फॉर आयजा. 8 फॉर आयजा. आयजा बहाज कमा के खिला रहे हैं, समझे आप.
कमाऊ पूत है। कमाऊ हैं, खिला रहे हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 8,900 हुए, आयजा खान के हिस्से में आए हैं 2,670, 30% बनते हैं 3 मिले इनको। वेरी गुड जॉब। शी डिजर्व्ड मोर, बट हाँ हम पिछली एपिसोड्स की बात She करें। deserves more in dramas also. More lines, more better characters. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। She deserves a lot more. अब बात हो जाए मेन प्रोटैगनिस्ट की, वहाज अली। Wahaj again, he had all the chances performance के good scenes, सिर्फ जो अज़ीका के साथ scenes है वहाँ मुझे लगता है वहाज को थोड़ी और मेहनत करनी थी। वहाज से इश्क मुझे अज़ीका के लिए नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, जो otherwise he does it so well. He doesn't love her, he respects her. So there's no love. So I think that's why maybe the transition for him will be also easy to maybe, I don't know whether he will fall in love with what's her name, Aiza or not, Mubashira. But I think the scenes with Mubashira, I love the first scene जिसमें ये आती है बाप के साथ और बहन के साथ. I really liked it. I think he can control or talk about, he can control or think about his facial expressions, and I think he did a very good job, especially जो बहन के साथ उसने जो वो कहती है ना कि मैं if you do this मेरी divorce हो जाएगी, और उससे पहले तो he was adamant, and then just the look he gives her. And what I love about it is that वो underplay करता है, over नहीं करता. All his scenes are very underplayed, except I feel he needed to overplay the love for Azika. So I will give him an 8. 8. I think he's done a very good. Excellent वहाज अली के लिए। रुबीना जी। Like Marina said, सिर्फ जो आयरा के साथ सीन्स होते हैं ना वहाँ बात नहीं बनती, बाकी कहीं वहाज ने जो दिखाना चाहा है हमें वो हमें पता चल। मुझे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी जब वो पहले भी तस्करा वो सीन के इसमें घर के नीचे खड़ा हुआ होता है और मैंने यूँ देखा, मैंने यूँ दोबारा देखा तो रात होगी। मैं रात कैसे होगी, क्या ये जंप है, क्या हुआ है? अगर आप एक मिजरी दिखा रहे हैं एक मेन प्रोटैगनिस्ट की कि उसकी लव लाइफ जो है ख़त्म होगी और उस लड़की नीचे खड़ा है, तो बड़ा एक इमोशनल ग्राफ होता है इस जगह का। तो आपका दिल मेल्ट होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ है, क्यों नहीं। दोनों साइड बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि यहाँ पे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कसूर राइटिंग का है कि कसूर डायरेक्शन का है। ये तो स्क्रीन प्ले था सारा, इसमें राइटिंग भी नहीं थी, इसमें तो बस शॉर्ट्स दिखाने थे आपने। दैट्स आल्सो राइटिंग में तो लोग प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि अब ये लव ये इन लव कपल क्यों इस्टेब्लिश नहीं हुआ सही से। इसमें कसूर सिर्फ एक्टर को नहीं हम दे सकते। हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे बस कमी रह गई है वहाज की एक्सपर्टीज में। मेरा क्वेश्चन है, ये कहीं बदर महमूद ने जान के तो नहीं किया क्योंकि कल को आयजा से भी मोहब्बत करवानी है? नहीं, ऐसे को थोड़ी होता है ड्रामों में। आयजा को मोहब्बत होगी, हम पिछली मोहब्बत की फोर्स एक एपिसोड पहले ये कह चुका है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता लड़की से, अज़ीका से। वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं नहीं है। ये पूरा डायलॉग है, अपनी बहन को कहता है। बट वो भी कोई इतना सॉलिड बात और जगह नहीं है जिससे जस्टिफाई हो जाए सब कुछ। बिकॉज देखो अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है तो फिर अपनी बहन की शादी को क्यों कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो? एग्जैक्टली तुम हो जो कि ठीक है चलो हो जाता होगा, तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट ही थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये दिस इज द एरिया जहाँ आपको बिफोर यू गो इनटू प्रोडक्शन, when you're in scripting stage, this is where you have to iron out all these problems and issues. Because अगर आप respect दिखा रहे थे तो फिर respect के साथ आपको हर situation create करना चाहिए। Whereas अज़ीका का अगर love था तो so these are the things you have to, जो आपकी pre-production होती है, that is equally important. So I would say कि इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें राइटिंग ने भी फेल किया है, डायरेक्शन ने भी फेल किया है और उस कॉन्सिक्वेंटली दोनों एक्टर्स ने भी। सारी सिचुएशन फ्लॉप सिचुएशन बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाज इज़ अ वेरी गुड एक्टर। वो जब बहन के साथ जाके खड़ा ही हुआ था और यूँ आगे बढ़ा था और बहन
ने एक्यूज़ किया था, उसका एक्सप्रेशन वाज अमेजिंग. बाकी सारी जगह जस्टिफाइड हैं. आई वुड स्टिल गिव हिम 7. 7, वेरी गुड जॉब. वेरी गुड जॉब. बहुत बेहतर लिखा जा सकता था वहाज का कैरेक्टर, लेकिन शुक्र है जब से ड्रामा शुरू हुआ है कुछ यहाँ उसको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिला है और उसने दिखाया है उसमें. एंड दे वुड, लाइक आई सेड, आई वांटेड मोर सीन्स ऑफ वहाज विद आयज़ा. और अब वो सिचुएशंस आ रही हैं जब ये दोनों अब फेस टू फेस हैं. कमरे में भी आके कहता हाँ भाई, कह रहा भाई मैं, ये मेरा कमरा है, तुमने कहाँ जाना है, तुम तो पहले अपना बंदोबस्त करो ना. तो बड़े स्ट्रेट फेस के साथ बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने. आई गिव हिम एन 8. ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 8500 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और वहाज अली के हिस्से में आए 2550. 30% बनते हैं, इनको भी 3 नंबर्स मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. वेरी गुड जॉब. तो जी ये हो गया ड्रामा सीरियल मैं. और अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो भी बहुत ख़ास है और बड़े उसकी डिफरेंट डायरेक्शन थी. उसमें एक रावी भी था, बल्कि रावी हैं और उसमें बड़ी थ्रेटिकल है, बड़ा उस पर सेट लगे हैं, चीज़ें हुई हैं और बहुत पसंद किया जा रहा है. मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल रज़िया की. रज़िया का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद.